Hello everyone. Welcome to my YouTube channel #DigitalDeepti. And first of all, thank you so much for your love and support. And looking forward for more support and more subscriptions. So do subscribe my channel. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस मैं बनाती रहूं. So today I am with the topic radioactivity. It was in the CBSE class 10 and in ICSE as well. So मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक बनाया है. And radioactivity is a part of modern physics. Okay. So today I'm here with this topic. So let's begin with this. And the content of the videos are atom, structure of atom. Now here's a very interesting concept, that is pen. What is pen? I'll let you know in the video. Then properties of subatomic particle, atomic and mass number, atomic model, isobar, isotopes, isotones, radioactivity, and then I will let you know about some scientists which are related to the field of radioactivity, then radiation decay, and then three radiation, that is alpha, beta, and gamma, and then benefits of radioactivity. So the first one is what today is what is an atom? Atom क्या है? आपने हम बहुत पहले से सुना होगा, क्लास 6 से आप, या जब साइंस आप पढ़ना स्टार्ट किए तो क्लास 6 क्लास 7 आप पढ़ते ही आते हैं व्हाट इज एन एटम. तो सूक्ष्म अणु या सबसे सूक्ष्म चीज. तो an atom is the smallest unit of ordinary matter that forms a chemical element, right? So atom क्या है? वो smallest, सबसे छोटा, smallest आपका जो पार्टिकल है वो आपका एटम कहलाता है. ओके. सो नाउ देन structure of atom. Now what is the structure of atom? Okay. So this is what I am talking about, this pen. Okay. Now देखिए पेन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? P for proton, E for electron and N for neutron. Okay. So कुछ हमारा एटम कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, इस टाइप का कुछ हमारा एटम दिखता है, जिसमें कि ये है हमारा न्यूक्लियस. ओके. इस और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन reside inside the nucleus and electron revolve around the orbit. Okay. So this is in short form के लिए इसका नाम दे दिया गया पेन, जो आपको याद रहे, एटम से रिलेटेड पेन, that is proton, electron and neutron. Okay. Now moving ahead. So now let me explain what is proton, what is neutron, and what is electron. So see, proton, large atom particles with a positive charge found with the neutron in the nucleus of the atom. Now P for proton, then P for positive charge. याद करने में आसान रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं. And these are large atomic particle with a positive charge जो कि न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होते हैं. ओके. न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होते हैं. देन न्यूट्रॉन. What is neutron? Heavy atomic particles, neutral particles. Now see, N for neutron, N for neutral. Neutral particles, they have no charge at all. इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. Okay. They are located in the nucleus. As I say, proton and neutron reside inside the nucleus. Okay. Now, what are electrons? So electron, the electrons based around the nucleus, they are negatively charged particles. Okay. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. Okay. So don't forget that the proton are positive, P for positive, and neutrons are neutral, N for neutral. So electron आप याद रख सकते हैं, आई होप कि क्योंकि इसे नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, बट आप याद रख सकते हैं, इतना टफ भी नहीं है. Okay. So moving ahead. Now here are some points which should be noted, that proton and neutron reside inside the nucleus of the atom, which is at its center. Okay. While electron revolve around the nucleus in some specific orbit. Now, the number of shells in which electrons are revolving in an atom depends on the total number of electrons. Okay. So total number of electrons जितने भी उसमें हैं उस हिसाब से शेल डिसाइड होती है. हालांकि आपने शेल के बारे में पढ़ा हो शायद, के शेल, एल शेल, एम, राइट. और मैंने डायग्राम में इसे दे भी रखा है आपको. सो दिस इज आप देख सकते हैं.
the maximum number of electrons in a shell can be 2n to the power 2, where n is the number of that shell. Now, what is this formula 2n to the power 2? Now, see, this is a different shell. This is the different energy level, if I can say that K, L, M, N, as I told you. So, what is K? When you put n to the power, जब आप n की जो value है वो 1 रखेंगे, right? सो यहाँ पे अगर आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ 2, दैट इज इस ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ओके, देन एल एन की जगह आप 2 रखिए, टू द पावर 2, दैट इज 4 एंड 4 टू 8, देन 8. लाइकवाइज आप 3 रखेंगे and 3 to the 3 का स्क्वायर 9 and 9 to the 18, so 2 8 18 ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बनता चलता है. ओके, सो आई होप ये आपके दिमाग में रहेगा और बहुत मुश्किल नहीं है इसे याद करना. मूविंग अहेड, नाउ हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक सिंबल. इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Then proton, that is positive होता है, electron negative होता है, and neutron पे कोई चार्ज नहीं होता, that is it is neutral. Okay, so ये याद करना उतना मुश्किल नहीं है. उसी के likewise आपका ये चार्ज भी शो, इनको आप शो भी कर सकते हो. Then charge minus, as I told you earlier, electron negative होता है, proton positive होता है और neutron पे कोई चार्ज नहीं होता, that is 0. Then come to the mass, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Then proton 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, and likewise of neutron also. Okay. Now, what is the location? As I told you, electron present around the nucleus, proton present in nucleus, and neutron also present in nucleus. Okay. Now, who discovered these subatomic particles? So, electron was discovered by J.J. Thomson. Okay. And proton is discovered by E. Goldstein, whereas neutron is discovered by Chadwick. Okay, now moving ahead. Now, here comes a very, very important topic, that what is atomic number and mass number. Okay, बहुत ही सिंपल है इसे याद करना, कोई मुश्किल नहीं है, पर ये बहुत ही बेसिक भी है, तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलिमेंट्स की जो एक कहते हैं बेस होता है वो आपका इसी पर डिपेंड होता है. ओके, नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम denoted as capital Z. Okay, whereas mass number is the total number of proton and neutron combinedly known as nucleons in the nucleus of the atom, denoted as capital A. Okay, so देखिए, अगर कोई एलिमेंट से, ये मैंने हीलियम का एग्जांपल दिया है, तो ये 4 आपका ब्लू कलर से है. देखिए, ये आपका मास नंबर है, और मास नंबर क्या होता है? तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and a number of proton is equal to what है? Atomic number, that is Z, right? So ये याद करना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपको. I hope ये आपको concept clear हो जाए. So please इसे अपने mind में रखिए. Atomic number, number of proton, and your mass number, number of proton plus number of neutron. Okay. Now, अगर मैं आपसे पूछूं कि what is number of neutron over there? What is number of neutron over there? So number of neutron is equal to what? Can you tell me? Number of neutron is equal to A minus Z, that is mass number minus atomic number. Okay, so आप किसी भी एटम को डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि ये, मतलब एटम की पहचानने का तरीका, that is atom is equal to number of proton. Okay, atom is defined by number of proton. Very simple is that. So keep this thing in mind, that atom is defined by number of protons. Okay, now moving ahead. Now, this is an atomic model of helium, as I have given you a very simple example over there. Now see, atomic number, as I told you, number of proton, and number of protons equal to number of electrons. Okay, number of proton and number of electrons are same, as you can see here. Name, symbol, helium, atomic 2, proton 2, and electron also become 2. So number of proton and number of neutron are same. Okay, and moving ahead. Now, what is isotope, isobar, and isotopes? Now see, isotopes क्या होते हैं?
कि the atom which have similar atomic number, okay, mind my words, similar atomic number, same element, similar atomic number, but mass number is different, okay. सेम एटॉमिक नंबर होएगा और मास नंबर आपका डिफरेंट हो जाएगा इसमें, सेम एलिमेंट्स के। मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं, देखिए क्लोरीन है आपका, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है एंड मास नंबर डिफरेंट है। नाउ सी आइसोटोप, कहीं ना कहीं टीयू एटॉमिक नंबर एंड टीयू आइसोटोप, आप इसे इसको मिला सकते हैं इसमें, है ना, इसको देख सकते हैं, कुछ कुछ मैच तो कर रहे हैं, राइट, ओके। ना आइसोबार, द एटम व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएंगे यहाँ पे, प्लीज डू माइंड दिस थिंग, एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएंगे और आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा पर मास नंबर सेम रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड, देयर इज आइसोटोन। नाउ व्हाट आर आइसोटोन्स? Atom which come from different element but the amount of neutron is same, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ पे सेम हो जाएगी और डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे तब। अब आप कहेंगे न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने बताया आपको पहले भी फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पे 31 माइनस 15 करेंगे और 32 माइनस 16 करेंगे तो आपको सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। सो इसे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइसोटोप, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। देन कम टू आइसोटोन, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है इसमें, तो उसे हम आइसोटोन कहते हैं। हालांकि और भी होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आई थिंक ऐसे भी कुछ ऐसे होते हैं, तो आप उनको भी एक बार चाहे तो देख सकते हैं, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तीन तो आपको पता होने ही चाहिए। Now moving ahead, now here are points to be noted. Now see, tin has the largest number of isotopes, that is 10. tin के 10 isotopes होते हैं। isotopes दो तरीके के होते हैं, stable isotope and unstable isotope. Now what are stable isotopes? So number of neutron is equal to number of proton in the nucleus, okay, and unstable isotope, number of neutron greater than number of proton in the nucleus, okay. So इस ये दो टाइप के isotopes हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। Then come to unstable isotopes undergo radioactive decay. Now that's the very important thing, and now we are moving ahead toward our main topic, that is radioactivity. अब हम radioactivity की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये जो अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं इन्हीं से ही रेडियो एक्टिविटी की कहानी शुरू हो जाती है, ओके। नाउ जो ये अनस्टेबल आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव डिके में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका काफी यूज भी है, ग्रेट मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज भी इनका होता है। नाउ सी, I have given some examples of radioactive isotopes, that is carbon 14, phosphorus 32, phosphorus 33, selenium 75, strontium, हाइड्रोजन जिन्हें ट्राइटियम भी कहते हैं, तो ये सब इसके यूज हैं। जैसे कि कार्बन 14 आपका कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस, आर्कियोलॉजी में बहुत काम है इसका, बायोलॉजी में आपका फॉस्फोरस 32 33 जेनेटिक्स से रिलेटेड काम इसका पड़ जाता है। सिलेनियम का प्रोटीन स्टडीज लाइफ साइंस में, whereas स्ट्रॉन्टियम जो है मेटाबॉलिज्म बोन फॉर्मेशन स्टडीज में बहुत काम आता है। then your tritium used to study life science and drug metabolism, okay. Now exchange of proton and neutron inside the nucleus are also known as mirror isobar. अब यहाँ पे एक important concept है, what is mirror isobar? So exchange of proton and neutron inside the nucleus, okay. I hope it will be clear for you. Moving ahead, now what is radioactivity? Now here we with our main topic, that is radioactivity. अब देखिए रेडियो एक्टिविटी में कुछ अगर तीन मोटे मोटे वो पकड़ के चले हम, that first of all radioactivity is an spontaneous process, okay, and spontaneous emission of alpha, beta and gamma radiation
फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यूरिंग देयर डिके। ओके, नाउ कुछ शब्द अगर पकड़ के चले, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से। ओके, इसे कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, या आप या मैं या कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। अब देखिए, जो रिएक्शंस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज योर फिजिकल, देन इज योर केमिकल, एंड द थर्ड इज योर न्यूक्लियर रिएक्शन। और रेडियो एक्टिविटी जो है आपका, वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। ओके, सो क्योंकि ये खुद से स्पॉन्टेनियस इमिशन, अल्फा और बीटा एंड गामा, मतलब अल्फा और बीटा साथ में तो कभी नहीं रिलीज होंगे, अल्फा या गामा होंगे या बीटा या गामा होंगे, बट अल्फा बीटा साथ में कभी भी रिलीज नहीं होते हैं। नाउ रेडियो एक्टिविटी, एज आई टोल्ड यू, न्यूक्लियर फिनोमेना है। किस लिए होता है? टू अचीव स्टेबिलिटी। जितने भी एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब ही अनस्टेबल हैं और अनस्टेबल आइसोटोप हैं, हालांकि अभी मैंने पहले आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, और ये किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं होते, नॉट इफेक्टेड बाय एनीथिंग। ओके, नाउ इट्स रेट कैन नॉट बी कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका एक बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है सन। सन में कंटिन्यूअस, आपके सूर्य में कंटिन्यूअस रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के नाम से आप जानेंगे। ये मैं आप अगर कहेंगे तो मैं आगे एक वीडियो इस पर भी बना दूंगी, अगर आप चाहेंगे तो। सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि इसका ही बहुत मेन पार्ट है, जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया है, बट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर कवर करूंगी। सो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद से ही होता है, एंड अनस्टेबल जितने भी न्यूक्लियस है सभी स्टेबिलिटी को पाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ओके, नाउ कम विथ आवर अदर, मूविंग अहेड। नाउ सी, यहाँ मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम और फोटो दिखा रखी है। दीज टू कपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड मिस्टर क्यूरी। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं इनकी जो डेथ का कारण था वो उनका अपना एक्सपेरिमेंट ही था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें इतनी हार्मफुल रेस निकलती थी, जिसके कारण इन साइंटिस्ट की अपने एक्सपेरिमेंट को करते करते ही डेथ हो गई। सो इन्होंने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में। बहुत सारी नई चीजें इनकी वजह से हमें जानने को मिली। ओके, नाउ सी, रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बात हो रही थी, जो कि हमने बताया कि अनस्टेबल आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव डिके में पार्टिसिपेट करते हैं। रेडियो एक्टिव डिके, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू स्लाइटली लाइटर न्यूक्लियस, मतलब अपने ही पोर्शन में, जैसे कोई एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो टूट करके स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होने के लिए लाइटर होता जाता है, टूट करके, accompanied by emission of particles, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और बोथ। नहीं, देखिए, अब रेडियो एक्टिव एटम्स जो है वो जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएशन, पार्टिकल। ओके, तो ये सारी चीजें उसमें रिलीज हो रही होती हैं, तो इसी को हम अल्फा बीटा और गामा के तौर पे आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड। नाउ सी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, फिर इनमें रेडिएशंस होती है। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल में क्या निकलता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ओके, सो और इसे स्टॉप एक शीट ऑफ पेपर से स्टॉप किया जा सकता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवी पार्टिकल है, सबसे हैवी पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, और इस पर चार्ज भी सबसे ज्यादा होता है, मतलब +2। आई टोल्ड यू, चार्ज कैसे डिफाइन होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं, तो कितने चार्ज हुए? +2 चार्ज। ओके, ना अब क्योंकि ये इतना इस पर सबसे ज्यादा चार्ज होता है, तो ये जो न्यूक्लियस है जिस जिस एटम से होते हुए गुजरता है उसको आयोनाइज करता चलता है, मतलब चार्ज करता चलता है। ओके, तो इसकी आयोनाइजिंग पावर भी कितनी कैसी होगी? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगी। बट ये हैवी पार्टिकल होता है, तो ये बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। ओके, सो इसे एक शीट ऑफ पेपर से भी आप रोक सकते हैं। नाउ कम टू बीटा रेडिएशन, हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसमें निकलता है, जो कि फ्यू मिलीमीटर एल्यूमिनियम की शीट से रोका जा सकता है। और कहते हैं इसके बाद फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो आपका गामा रेडिएशन होता है। हालांकि बीटा पार्टिकल में बताऊं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है
ये इसका जो मास होता है क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसका मास जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू गामा रेडिएशन, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मींस फोटोन, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है वो इसमें से रिलीज होता है आपका गामा रेडिएशन में। और ये इसको रोकना बहुत आसान नहीं होता है, मतलब एक बहुत मोटी दीवार लग जाएगी इसको रोकने में। एंड जैसे कि मैंने बताया कि अल्फा बीटा तो आर पार हो भी जाता है, पर मतलब गामा तो बिल्कुल ही इसको रोकना बहुत मुश्किल है, ये एकदम आपके शरीर से भी छेद करके निकल जाता है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि जो साइंटिस्ट थे उनकी मौत भी इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई, राइट। सो प्लीज आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। Now moving ahead. Now see, there are certain radioactive elements. यहाँ पर मैंने radioactive elements बता रखे। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर बढ़ता गया तो मतलब जो हैवी पार्टिकल थे, अब ये जो स्टोरी है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, कोई भी मतलब कैसे ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट ये चीज कैसे बता सकते हैं? तो एक स्टेबिलिटी बेल्ट का कंसेप्ट है इसमें, जिसमें कि जब तक एटॉमिक नंबर 20 था तब तक तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर चल रहे थे। बट जैसे जैसे ये ज्यादा होता गया 20 से ऊपर, तो जितने भी आए मतलब एटॉमिक नंबर 80 से क्रॉस जितने भी थे उतने आप देख सकते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो एक्टिनॉइड की सीरीज है ये तो पूरी ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो हालांकि इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ सी 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। यहाँ मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आपसे शेयर कर रखी है। हालांकि अल्फा अल्फा पार्टिकल बीटा गामा मैंने आपको बता भी दिया है, तो यहाँ मैंने एक टेबल के जरिए भी इसको बताने की कोशिश की है। दैट नेचर इसका हीलियम एटम होता है, ओके। मैंने बताया 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होते हैं। सो हियर द मास नंबर बिकम 4। ये कैसे हुआ? तो मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है इसमें, तो 2 + 2 दैट इज 4, और हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका 2 हो गया, ओके। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है उसको आप हीलियम एटम भी एक तरीके से कह सकते हैं, ओके। नाउ sorry, 2 proton and 2 neutron over there. I'm really sorry for that. 2 proton and 2 neutron over there, okay. Now moving ahead, beta particle, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन एज आई टोल्ड यू। और गामा जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ओके। नाउ चार्ज अल्फा पार्टिकल पे सबसे ज्यादा चार्ज होता है, दैट इज +2। बीटा -1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसमें, और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता। मास अल्फा पार्टिकल का सबसे जो हैवी होता है, मैंने बताया ये हैवी पार्टिकल है। और बीटा वेरी स्मॉल, और गामा का तो कोई भी मास नहीं होता। अब क्योंकि ये हैवी है तो इसकी स्पीड क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, स्लो होगी। बीटा फास्ट है और गामा स्पीड ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा स्पीड गामा की है सारे पार्टिकल्स में, ओके। नाउ मूविंग अहेड, आयनाइजेशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन इफेक्ट? आयनाइज करना मतलब क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज सबसे ज्यादा, दैट इज +2, राइट। सो इसकी आयनाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, है ना। आयनाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये ज्यादा जहां से गुजरेगा उसको मतलब चार्ज करता चलेगा। एंड बीटा की वीक होती है और गामा की तो बहुत ही ज्यादा वीक होती है। सो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नाउ मूविंग अहेड, ना सी यहाँ मैंने रिएक्शंस आपसे डिस्कस कर रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसे सॉल्व करना ट्रस्ट भी बहुत ही आसान होता है। अब जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया, यूरेनियम 235 एंड 92। now 92 is its atomic number and 235 is its mass number, okay। so अगर अल्फा इमिशन हो रहा है तो क्या होएगा? आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 रिड्यूस होएगा और आपका मास नंबर 4 रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यूरेनियम 235, इसका जब मास नंबर रिड्यूस होगा कितना? 4 हुआ, तो 231 हो गया। और 92 से कितने आपके एटॉमिक नंबर में से कितने चले गए? 2, दैट इज 90, ओके। ऐसे ही बीटा का देखिए, ये जो यूरेनियम है ये बस इसमें से टूट करके इतना पोर्शन अलग हो गया है ना, इसको पैरेंट
पैरेंट कहेंगे और ये डॉटर प्रोडक्ट में कहलाएगा। ओके, इसको रेडियो एक्टिविटी की लैंग्वेज में ऐसे डोनेट किया जाता है ना। बीटा डीके में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, तो 235 235 और इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है यानी -1, तो क्या होएगा, वो ऐड हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इमिशन होना यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो वो माइनस चार्ज देता हो जाएगा, तो आपका एटॉमिक नंबर प्लस हो जाएगा इसमें। नाउ गामा डीके में आपका एटॉमिक नंबर से सॉरी मास नंबर से चेंज होएगा और आपका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ओके, सो ये आपका इसको इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नाउ मूविंग अहेड। हाँ, यहाँ मैंने प्रॉपर्टीज तीनों रेडिएशन की डिस्कस कर रखी है, हालांकि आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, तो ये एक क्विक रिकैप हो सकता है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। नाउ बेनिफिशियल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के हालांकि नुकसान तो बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल रेज इससे निकलती हैं जो बहुत ज्यादा कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बट इसके कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि मैंने बताया मेडिकल टर्म में और बाकी जगहों पे इसको यूज भी किया गया है। तो ये एक तरह से हेल्पिंग हैंड भी है, किल कैंसर सेल्स को किल करने में काफी यूज है इसका। आपकी पाइप्स में लीक ढूंढने में काफी हेल्प करती है, अगर आपके घर में लीक हो रहा है तो आपकी पाइप्स में तो आप इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। एंड फूड स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स में बहुत यूज है इसका, और ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली करने, क्योंकि मैंने बताया गामा रेडिएशन जो होती है वो मतलब आपके शरीर को भी छेद कर निकल जाए, तो अंदर ऑर्गन्स को चेक करने में प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो गामा रेज को यूज करके इससे हेल्प भी ली जा सकती है। ओके, नाउ the most important part of my video. Thank you so much अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, and please do support me, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा इससे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।